A very good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 3. The chapter name is Fiber to Fabric. In previous class we already understand how we get from wool from sheep, okay, and what is the process here, how we produce to wool and how we make a wool from sheep, okay. And today our new topic is silk. Before we silk started, short topic is remaining. This one is the occupational hazard. What is occupational hazard? Occupational hazard that disease कि किसी भी वर्क को करते हुए, कोई भी ऑक्यूपेशन को करते हुए आपको वो डिजीज हो जाती है, दैट इज द ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ओके। इन आपने देखा कि वूल जो शिप के हेयर कटिंग से लेकर जब तक उसका यर्न और फैब्रिक नहीं बनता, बहुत सारी मैनुअल पावर वहां पर यूज होती है, ओके। In wool industry is a very important means of livelihood for many people in our country, but shorter job is risky as sometimes they get infected by a bacterium. देखिए शॉर्टर जॉब क्या होती है, जब हम वूल को सेपरेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे ये बैक्टीरियम जो होता है उसकी वजह से एंथ्रेक्स डिजीज कॉज हो जाती है, और ये बैक्टीरियम जो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड अ शॉर्टर डिजीज। इस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण जो मैनुअल पावर है, जो मैन जो वहां पर काम करते हैं उनको शॉर्टर डिजीज हो जाती है। Such risk faced as a worker in any industries are called a occupation hazard. तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन hazard बोलते हैं। नेक्स्ट हियर इज Buzo is wondering why it hurts when someone pull his hair but not when he go for a haircut. ऐसा क्यों होता है कि जब हम हेयर कट करवाने जाते हैं तब तो हमारे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता, बट व्हेन कोई हमारा हेयर पुल कर रहे होते हैं तब अब हमारे को जब व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर या आर हेयर तो हमें हर्ट फील होता है। ऐसा क्यों है ना? तो आंसर इज हेयर इज मेड अप ऑफ अ डेड सेल। हेयर किससे बने होते हैं? डेड सेल से। सो इट डज नॉट हर्ट व्हेन समवन कट द हेयर, ओके, because hair is a dead cell made up of a dead cell. That's why we don't hurt anything. Okay. It is just like a cutting nail. जैसे हमारे nails कट करते हैं जैसे बिल्कुल वैसा ही होता है। However, when someone pull the hair, but someone pull our hair, तो skin is attached to the hair also get pull. जो हमारी skin है वो भी क्या हो जाती है? उसके साथ में pull हो जाती है, which is made up of living cell, क्योंकि our skin जहाँ से बोन हेयर्स जो होते हैं ज्वाइंट होते हैं हमारी स्किन के साथ में, वहां पर this skin is made up of a living cell and nerve ending also here. So that is the reason we hurt. इसी वजह से हमें हेयर कट के टाइम पे we don't hurt and but someone pull our hair तो हमें हर्ट फील होता है, हमें दर्द होता है। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके स्टूडेंट, next one is Buzo is wondering why a cotton garment cannot keep us warm in winter as a woolen sweater does. ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई कॉटन क्लोथ जो हम पहनते हैं वो हमें वार्म क्यों नहीं रखते, वुलन क्लोथ के हमें वार्म क्यों रखते हैं? ओके, तो इट्स आंसर इज कॉटन क्लोथ इज अ वेरी थिन फाइबर। ओके, कॉटन क्लोथ से जो फाइबर है ना वो बहुत थिन होता है, एंड देन वी मेक अ फैब्रिक, फैब्रिक इज ऑल्सो अ थिन, ठीक है। तो कॉटन क्लोथ डोंट ट्रैप द एयर, ठीक है। कॉटन क्लोथ के बीच में एयर ट्रैप नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत खुद ही बहुत पहले से थिन होता है, ओके। तो दैट्स व्हाई कॉटन क्लोथ जो होते हैं ना वो हमें कूल कंफर्टेबल फील करवाते हैं, बट वुलन क्लोथ जो होते हैं ना दे आर थिक, okay, and that's why they trap a lot of air inside it, or we all know very well, and in this chapter we already read about that कि air is a poor conductor of heat। air क्या होती है? poor conductor of heat होती है। तो that's why winter yeah woolen clothes keep us warm, but in summer cotton clothes we wear because they are cool, they feel cool and comfortable, because वो हमको क्या कराते हैं? they feel the cool and comfortable because cotton clothes are thin in texture, okay। Okay, next one is our new topic is silk. It's a very important and a very interesting topic, how we get silkworm to silk। हम कैसे silkworm से, silk moth से silk को obtain करते हैं, okay। Now let's start। Silk fiber are also a animal fiber। Silk fiber is also called a animal fiber। Why we called a animal fiber? Because silk fiber we get from silkworm, and silkworm is a animal। silkworm क्या है? एक animal है ना, तो that's why we called a silk is a animal fiber। Silkworm spin the silk fiber
and the rearing of silkworm or obtaining silk is called as sericulture. Here is the answer is what is sericulture? What is sericulture? ओके, तो सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर क्या होगा कि भाई सेरिकल्चर है कि भाई सिल्क वर्म को रियर करना। रियर मीन्स अपन ने रीड कर लिया था पहले ही, भाई उसको पालना। ठीक है, सिल्क वर्म आर रियर टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क वर्म को रियर करना, वाई किस लिए रियर करना? बिकॉज इट प्रोड्यूस सिल्क, सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सेरिकल्चर। ओके, तो हम सिल्क वर्म को रियर कर रहे हैं टू गेट या ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क। ठीक है ना, तो हम गेट करने के लिए, क्या गेट करने के लिए? सिल्क को गेट करने के लिए। तो दिस प्रोसेस नेम इज अ सेरिकल्चर। आई रिपीट दिस डेफिनेशन, द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। रियरिंग करना सिल्कवर्म की फॉर ऑब्टेन सिल्क करने के लिए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेरिकल्चर। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, next one is your mother and grandmother and the kind of silk sarees they have. आपने देखा होगा आपकी मदर के पास, आंटी के पास, ग्रैंडमदर all have a silk saree. List the kind of silk, क्योंकि different different type का silk present होता है बेटा. Okay, maybe mulberry silk, tussar silk, iri silk, munga silk, different type of silk is there. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know interesting the life history of silk moth. हम सिल्क के बारे में, कैसे हमें सिल्क मिलता है, सबसे फर्स्ट हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि लाइफ साइकिल क्या होती है सिल्क मोथ की। ओके, सिल्क मोथ क्या है? सिल्क मोथ एक स्मॉल इंसेक्ट है जिससे हम वी गेट सिल्क, हम जिससे हम क्या करेंगे? सिल्क लेंगे। ओके, फर्स्ट व्हाट सिल्क का टेक्सचर कैसा होता है? व्हाट इज सिल्क? सिल्क इज अ फाइन and soft and shiny natural fiber. Why it is natural fiber? Because we silk get from animals, है ना? So any fiber we get from plant, any fiber we get from animal are called a natural fiber. Okay, so that's why silk we get from animal. Okay, and silkworm, that's why we call the silk is a natural fiber obtaining from a cocoon of silkworm. What is cocoon? We understand about that in next topic. Okay, next is a silk fiber obtained from silkworm is converted. Then when we get from silkworm to silk fiber, okay, obtained from silkworm is it converted into a silk one. हमें जब silk fiber मिल जाएगा तो then हम क्या करेंगे? silk fiber को we convert into a silk yarn, okay, and then into a silk cloth, maybe sari, maybe other dresses we make it. Okay, the silk cloth is used to make sari, dresses, and other dress materials are we made. A soft looking silk yarn is highly elastic. जो silk है वो बहुत ही highly elastic होता है, and it is a very strong, and it is strong compared thread of steel. Maybe इतना strong thread होता है ये, इसको हम compare कर सकते हैं किससे? steel से. Okay, India produce many type of variety of silk. Okay, each obtained from a different kind of silkworm. देखिए, जैसे शीप के हमने बहुत सारे टाइप्स को रीड किए थे, है ना? लोही, मारवाड़ी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और कौन सा था? रामपुर, नाली, भाखरवाड़ी, पातनवाड़ी। तो ऑल दे ऑल हैव ऑल द टाइप ऑफ अ ब्रीड ऑफ शीप, एंड सब ब्रीड से डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की वूल हमको मिल रही थी। किसी से गुड क्वालिटी वूल मिल रही थी, किसी से कारपेट वूल मिल रही थी, किसी के कोर्स हेयर ज्यादा थे, किसी के फाइन हेयर ज्यादा थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ wool are there. Okay, same just like that. So different some different type of silkworm is there, or different type of we get silk from there. Okay, first one is for example just like that mulberry silk, tussar silk, eri silk, and munga silk. Okay, so different type of silk is that. Okay, but in India, which type of silk we use mostly? In India, mulberry silk is main variety of silk produced in India. Mulberry silk जो है, मैंने 4 टाइप के सिल्क आपको बताया बेटा। फर्स्ट वन इज मलबरी, तुषार, eri, and munga silk. Okay, but in India, mulberry silk is the main variety of silk produced in India. Mostly 90% of the mulberry silk come from Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज अ सिंगल कैटरपिलर। एक सिंगल कैटरपिलर जो होगा ना, प्रोड्यूस नियरली 300 मीटर ऑफ सिल्क थ्रेड। कितना थ्रेड देता है? 300 मीटर सिल्क थ्रेड देता है। मे बी हम सपोज करते हैं कि हमें 1 kg रॉ सिल्क प्रोड्यूस करवाना है या हमें क्या लेना है,
तो वी रिक्वायर अ 5500 सिल्क मोथ, हमें कितने रिक्वायरमेंट होगी सिल्क मोथ की? 5500 silk moth. We require about 5500 silk moth, okay, to obtain a 1 kg of raw milk silk. हमें 1 kg raw silk के लिए इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। So I think it's clear. We read about the silk is a fine, soft and shiny natural fiber obtained from a cocoon or silk moth. Silk moth is an insect we get from silk. ठीक है। Next one is silkworm are reared to produce silk. This is known as a sericulture. Then when we get a silk fiber from silkworm, it convert into a yarn. Then after cloth, and after that we make a different type of dress material. Okay. Different type of varieties here. Maybe mulberry silk, tusar silk, eri silk, and munga silk. In India, mostly we produce the silk variety as mulberry silk. Okay. Next one is life history of silk moth. What is life history of silk moth? How silkworm produce, how silkworm changes in her whole life. ठीक है. So life cycle of silkworm consists of the following steps. First one is egg. Second one is caterpillar or silkworm. Both are the same. जो कैटरपिलर है, एग के अंदर से जो लार्वा रिलीज होगा या हैच होने के बाद में जो लार्वा निकलेगा, कम्स आउट होगा, that larva name is a caterpillar, and also we call name as this larva name is a silkworm. Okay, then after it changes into a pupa, and then after silkworm. Okay, we read all the stages one by one. Okay, now here is a female silk moth lay egg. देखिए एक मेल सिल्क होगा और एक फीमेल सिल्क होगा. कंपैरिजन टू मेल सिल्क, फीमेल सिल्क मोथ का जो शेप और साइज जो होता है कंपैरिजन टू मेल, female species of silk moth is shorter than male silk moth. Okay, and जो female silk moth lay egg, जो female silk moth होती है lay egg करती है, and from hatch larva, then after some time 10 to 15 days the egg hatch and larva comes out, which are called, this larva are called caterpillar or silkworm. Okay, तो जो उस एग में से जो लार्वा बाहर निकला है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, हैच होते ही जो लार्वा बाहर निकला है, उस लार्वा को ही हम बोलते हैं बेटा कैटरपिलर भी बोल देते हैं और सिल्कवर्म भी बोल देते हैं. डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द व्हाट इज कैटरपिलर, व्हाट इज सिल्कवर्म एंड व्हाट इज लार्वा. all are the same thing. Okay, they grow in size, and when the caterpillar is ready, enter the next stage of his life history is called a pupa. Okay, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो स्टेज है वो एग है. ठीक है, the female moth lay its egg on the leaves of mulberry trees. देखिए मेन जो सिल्कवर्म जो है रियर किया जाता है ऑन मलबरी लीव्स पे रियर किया जाता है, बिकॉज जो लार्वा है जो फीड करता है या उसका जो खाने का सोर्स है वो क्या है, सिर्फ मलबरी लीव्स है. ओके, तो दैट्स व्हाई फीमेल मोथ अपने जो लेग एगिंग करती है वो मलबरी ट्रीज पे करती है. ओके, so first stage is the female, it's an egg. The female moth lay its egg on the leaves of a mulberry tree. I think it's clear. Second stage is a caterpillar, larva and silkworm stage. The egg hatch into the larva. Egg hatch होता है into larva में called a caterpillar or silkworm, which feed precisely on the mulberry leaves, grow fast. ये बहुत ही फास्ट क्या करता है, mulberry leaves को eat करना स्टार्ट कर देता है और बहुत फास्टली ग्रो होता है. आफ्टर 4 to 6 weeks they achieve their maximum size and obtaining maximum size, and फिर then after it stop eating. Okay, so after hatching जो larva बाहर निकला है, it is called a silkworm and caterpillar. Then after this silkworm is continuously feed and finally chop mulberry leaves फॉर अबाउट 6 वीक, लगभग 6 वीक के आसपास तक ये क्या करता है, इसको ईट करता रहता है मलबरी को. ड्यूरिंग दिस पीरियड they grow in size, their gland that produce till develop attain 1/3 the size of the larva. At this stage the silkworm is ready to enter the next stage of its life cycle called a pupa. ये जो स्टेज है जिसमें उसने अपने आप को पूरा का पूरा खाना खाकर अपने साइज को लगभग बढ़ा लिया है, लगभग 1/3 डबल कर लिया है. मैक्सिमम साइज जो कैटरपिलर का होता है वो 6 वीक में हो जाता है. देन आफ्टर इट स्टॉप ईटिंग, उसके बाद में क्या होगा, ये सिल्कवर्म जो है खाना खाना बिल्कुल पूरा तरीके से बंद कर देगा. They grow size when the caterpillar is ready, enter the next stage of life cycle pupa. It first weave a net to hold. When caterpillar
एंटर इन द नेक्स्ट स्टेज, दिस नेम इज अ प्यूपा, उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूपा। देखिए दिस वन इज मेल सिल्क मॉथ एंड दैट इज दिस वन इज अ फीमेल सिल्क मॉथ। ओके, नेक्स्ट दिस वन इज मलबरी लीव egg, this is one is a first stage. Okay, second is a silkworm, caterpillar. Okay, next one is pupa and cocoon stage. This stage name is a pupa, एंड जो ये अपने चारों तरफ ये कवरिंग कॉस्ट बना लेते हैं ना, इसको हम कोकून बोलते हैं। ओके, तो सिल्क वर्म जब कैटरपिलर बनेगा, बहुत सारा फीड किया उन्होंने लीव्स को, देन आफ्टर ये कौन सी स्टेज में चेंज होएगा, प्यूपा स्टेज में, दिस स्टेज। ओके, कोकून क्या है बेटा, काउटिंग कोकून जो इसकी आउटर कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज अ कोकून। बट कैटरपिलर जो है वो उसके इनसाइड में है और अपने आप को डेवलप कर रहा है और इस कवरिंग के इनसाइड में है, दिस स्टेज इज नोन एज अ प्यूपा। ओके, तो लाइफ साइकिल अभी नेक्स्ट स्टेज में प्यूपा स्टेज में जा रही है। तो प्यूपा स्टेज में जाने के लिए जो कैटरपिलर सिल्कवर्म क्या करता है, प्यूपा होल्ड इटसेल्फ बाय वीविंग अ नेट अराउंड इट्स बॉडी बाय स्विमिंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ एट। अब क्या करते हैं कि फुल्ली ग्रोन सिल्कवर्म जो होता है ना, अटैच इटसेल्फ टू अ ट्विंग, अपने आप को एक ट्विंग के एक टहनी से अटैच कर लेता है। ओके, एंड दे स्टॉप मूविंग, और मूव करना भी बिल्कुल स्टॉप कर देता है, बिकॉज उसने फीडिंग करना तो बंद कर ही दिया है, खाना खाना तो बिल्कुल बंद कर दिया है। तो एक फुल्ली ग्रोन सिल्कवर्म अटैच इटसेल्फ टू अ ट्विंग, एक ट्विंग के एक टहनी से वो अपने आप को स्टिक कर लेता है एंड स्टॉप मूविंग, और मूविंग करना बिल्कुल बंद कर देता है। इट वीव अ कवर अराउंड इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड अ प्यूपा। वो अपने चारों तरफ एक कवर बनाना स्टार्ट कर देता है, इज कॉल्ड अ प्यूपा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। द प्यूपा स्टार्ट सिक्रेटिंग सिल्क फाइबर, ये जो प्यूपा ये जो स्टार्ट कर रहा है ना अपने आगे अराउंड में कवर बनाना, इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपा। प्यूपा स्टार्ट सिक्रेटिंग सिल्क फाइबर, प्यूपा स्टार्ट करता है अपनी बॉडी के अंदर से सिल्क फाइबर को सिक्रीट करना। ओके, फ्रॉम द ग्लैंड्स इन इट्स हेड अंटिल इट्स कंप्लीटली कवर्ड विद देम। वो अपने जो हेड के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस करने वाली, उससे उस सिल्क फाइबर को कंटिन्यूअसली सिक्रीट करता रहता है, और तब तक सिक्रीट करते रहते हैं जब तक कि उनके कंप्लीटली वो चारों तरफ से अपने आप को अपने अराउंड चारों तरफ से अपने आप को क्या नहीं कर ले, कवर ना कर ले। द फाइबर हार्डन व्हेन एक्सपोज टू एयर। इस फाइबर की क्या क्वालिटी होती है बेटा, इस फाइबर की ये क्वालिटी होती है कि जो ये एक तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, किसकी, सिल्क वर्म की। ओके, नेक्स्ट इज द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन लार्वा हैड सिक्रीट स्टिकी फ्लूइड, एक स्टिकी फ्लूइड उसके अंदर से सिक्रीट होता है, दैट इज प्रोटीन। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है बेटा, ये प्रोटीन का नाम क्या है, प्लीज राइट डाउन हियर, सेरिसिन एंड फिब्रोइन। जो सिल्क ग्लैंड से जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, जो स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, दैट इज द प्रोटीन। द प्रोटीन नेम इज सेरिसिन एंड fibroin. I repeat, sericin spelling is Sericine, sericin, Sericine, and second one is fibroin, 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 ठीक है। इट इज अ सॉफ्ट एंड इलास्टिक। देखिए अब जो सेरिसिन प्रोटीन है वो थ्रेड्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको स्टिक करने में हेल्प करता है। और जो फेब्रोइन प्रोटीन है वो क्या सिक्रीट होएगा, वो एयर की कांटेक्ट में जैसे ही आता है, विच इज बाउंड अराउंड देयर बॉडी अलॉन्ग अ लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड बनता रहता है। ये जो प्रोटीन है, जो फाइब्रोइन प्रोटीन है, दिस प्रोटीन सॉलिडिफाई व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद एयर। इस प्रोटीन की क्या क्वालिटी है कि जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो वैसे ही ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। इसके माउथ से तो एक लिक्विड सिक्रीट होता है, देन इन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, इट हार्डन एंड सॉलिडिफाई, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है। द प्रोटीन solidify when it come in contact with air and form silk fiber, और क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। द हेड स्विंग फ्रॉम साइड, तो उसका जो कैटरपिलर का जो हेड है ना वो रेगुलरली, द हेड स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड ड्रॉन द फिगर 8, जैसे 8 बनता है ना वैसे वो अपने माउथ को राउंड एंड राउंड मूव करता रहता है 8 फॉर्म बनाने में, जैसे 8 बनाते हैं ना अपन उस तरीके से। ओके, जैसे इस तरीके से वो अपने हेड को इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो द हेड swing from side to side and draw the figure 8 like structure while spinning, or the process takes 3 and 7 days to complete। ये जो प्रोसेस है इस पूरे कोकून को बनाने का 3 to
7 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ये ऐसे एक बना बना के अपने चारों तरफ इस कवरिंग को कंप्लीट कर लेता है। ओके, दिस स्टेज नेम दिस द लार्वा कंटिन्यूस डेवलप इनसाइड द कोकून। अब ये देखिए आउटर कवरिंग जो ये कोकून की बनी है ना, ये देखिए इस तरीके से, ये जो आउटर कवरिंग बनी है जिसको मैं रेड कलर कर रही हूँ, ये तो क्या है, कोकून है। ओके, अब इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका प्यूपा रहता है। ठीक है, तो ये दिस स्टेज नेम इज अ प्यूपा। देखिए, ठीक है, जो हमारा कैटरपिलर है वो अंदर डेवलप हो रहा है और बाहर की तरफ एक कवरिंग हो गई फिब्रोइन प्रोटीन की। दिस इज अ कोकून। ओके, दो प्रोटीन थे जो उसके सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे थे, सेरेसिन एंड फाइब्रोनिन। सेरेसिन तो क्या करती है, थ्रेड्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। ओके, एंड फाइब्रोइन प्रोटीन जो होता है एयर के कांटेक्ट में आते ही उस हार्डन होकर सिल्क फाइबर को मेकिंग करने का, बनाने का काम करता है। ओके, व्हेन द वर्म मैच्योर इनटू एन एडल्ट, अब देखिए अंदर जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा कोकून इन अ डेवलप एडल्ट, ठीक है, वेट 1 सेकेंड बेटा। ओके, तो ये इस तरीके से जब बन जाएगा तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में वो कैटरपिलर ने सिक्रीट किया फाइबर को, here protein which harden on exposure on air becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely cover itself and silk fiber and turn into a its pupa. तो ये कैटरपिलर अपने को completely cover कर लेता है चारों तरफ से, then it turn into a pupa. This covering जो outer covering है, its name is a cocoon. उसको हम क्या इस नेम से जानते हैं, cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cone. देखिए जो फर्दर डेवलपमेंट प्यूपा का जो मौत का हो रहा होता है वो कंप्लीटली कोकून के इनसाइड में हो रहा होता है। सिल्क फाइबर आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का यूज हमने पढ़ा ही था। फर्स्ट वी टर्न इनटू अ सिल्क एंड देन वी मेक अ